Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. In this recorded lecture, I am going to explain review questions of the first chapter of chemistry, that is states of matter. So quickly jump towards page number 90. The first review question is: the diagram shows the particles in solid water, ice, and in liquid water. So there are two beakers. In which in beaker 1 there is a solid water, that is ice, and in beaker 2 it is liquid water. So the distribution of the atoms are shown in this diagram. So come towards part A. Describe how the particles move in the solid. Because the particles in the solid, as I have already told you, the particles in the solid are very tightly bounded to each other. That is the reason that they cannot move around freely. So the answer to this question is: particles do not move around but vibrate while touching each other. Now come towards part B. Describe one difference in the arrangement of the particles in ice and in liquid water. They are asking between the arrangements of the particles, what is the difference between the arrangement of the particles and the ice and the liquid water. As I have already told, the solid में तो all the particles are tightly bounded to each other, लेकिन liquid में there is a space to move the particles. There is a little bit space so that particles move around. So the answer would be: in ice water, particles are arranged in a regular pattern, and in water the particles are arranged randomly so that they can move around. Now come towards question number 2. In the diagram below, each arrow represents the change of a state. For example, there is a diagram. The solid turns into liquid and then into gas, and there is a reversal action only, that the gas turns into liquid and then turns into solid. In part A, which arrow represents freezing? यानी एरो में हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग वो चीज़ होती है जो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं. सो द एरो C इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. नाउ पार्ट बी, विच एरो रिप्रेजेंट्स कंडेंसिंग? तो कंडेंसिंग वो उसको कहा जाता है जो गैस को लिक्विड में चेंज करते. कोई भी गैस जब लिक्विड में चेंज होती है, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. जैसे कि बारिश होती है तो कंडेंसेशन होती है तब. तो गैस जब लिक्विड में चेंज होती है, दैट इज़ पार्ट डी. नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट सी. वो गिव द नेम ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय एरो ए. यानी एरो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे सॉलिड से लेकर लिक्विड में जो चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पार्टिकल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है मेल्टिंग. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. ऑक्सीजन इज़ अ गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी जो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस की फॉर्म में होती है. डिस्क्राइब द अरेंजमेंट्स एंड बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैस. अब क्वेश्चन है, ये एक डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है कि गैस में जो है वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और बिहेवियर कैसा होता है. तो बेसिकली गैस के अंदर, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन में भी आपको बता चुकी हूँ, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर एक दूसरे से होते हैं और बिल्कुल फ्रीली जो है वो सेट हुए हुए होते हैं, कहीं पे भी मूव कर जाते हैं. इनको जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा ये एक्सपैंड होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा अपने आप को दूर दूर अरेंज करते चले जाएंगे. और दैट इज़ द रीज़न दे कैन मूव वेरी फ्रीली. So we can write it like this: in gases the particles do not touch each other, they move around very quickly, and there are weak forces of attraction between the particles. ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर है. वन मोर थिंग आई वांट टू रिपीट कि अगर हम गैस के अंदर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे. जो हम CNG सिलेंडर्स यूज़ करते हैं अपनी कार्स में, उसके अंदर गैस को जो है ना प्रेशराइज़ करके CNG के मतलब किट के अंदर जो सिलेंडर्स हैं उनके अंदर फिल किया जाता है. दैट इज़ द रीज़न कि उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब जो है वो अरेंज हुए होते हैं. पार्टिकल्स बहुत करीब अरेंज हुए होते हैं.
Now come towards part B. Use ideas about particles to explain why oxygen gas can be compressed. Oxygen gas क्यों compress कर दी जाती है? As particles in the gas are not touching each other, they can be compressed so that like they can be pushed close together. Now come towards question number 4. A student heats a piece of solid metal. The metal remains solid. Why does it gets bigger? Choose the correct answer from the list below. यानी एक स्टूडेंट था जिसने एक मेटल का पीस जो है वो सॉलिड मेटल के पीस को उसने हीटअप करना शुरू कर दिया. वैसे तो सॉलिड जो है वो सॉलिड ही रहा, लेकिन उसका साइज़ एक्सपैंड हो गया. अब इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. वी हैव टू सेलेक्ट कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. The particles get bigger, the particles gets further apart, the particles move around from place to place. तो the answer is the particles get further apart. ठीक है. उसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए. दैट इज़ द रीज़न कि इसने जो अपना साइज़ चेंज कर लिया और हीट अप होने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए थे. Now come towards question number 5. Complete the sentences using the words from the list. You may use them once, more than once, or not at all. Basically this is a kind of question that is choose the best answer. There are 3 options: increases, decreases and stays the same. अब हमको क्या करना है, हमको ये जो blanks दी हुई हैं इसमें इसको fill करना है select करके. Part A, when liquid water boils, the distance between the particles dash. यानी जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, जो लिक्विड वाटर होता है जब हम उसको बॉईल करते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, सेम होता है. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, यानी उनका साइज़ क्या हो जाता है, यानी जो लिक्विड है उसका साइज़ क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. Now part B is when liquid water boils, the strength of the attractive force between the particles dash. यानी इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, क्योंकि दूर दूर हो जाता है तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. तो द आंसर इज़ डिक्रीज़. नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट सी. व्हेन स्टीम कंडेंसेस, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. यानी जब स्टीम कंडेंस होती है तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो कैसी हो जाती है, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. Write the letter of each label next to the correct line on the diagram. The first one is water in the liquid state, B is water in the gas state, and the C is mixture of air and steam. अब what you have to do कि आप इसकी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को ही आपने लेबल करना है. ठीक है. A, B और C जो है वो आप ऐसे लेबल करेंगे. तो जो सबसे ऊपर है पहला वाला जो एरो है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ एयर एंड स्टीम, क्योंकि वो बॉयल हो रहा है और बॉयल होने के बाद बाहर निकला है, तो जो सबसे ऊपर होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ एयर एंड स्टीम यानी सी होगा. उसके नीचे जो है वो बी होगा, यानी जो सेकंड वाला एरो है वो बी होगा, उसमें जो बबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वाटर इन द गैस स्टेट, ये स्टीम को रिप्रेजेंट करिए. और जो ए है वो सबसे लास्ट वाला नीचे वाला होगा जो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाटर इन अ लिक्विड स्टेट है. Come towards question number 7. It has 6 parts. The table gives the melting and boiling points of the for 5 substances. इसमें 5 substances दिए हुए हैं और उसका melting और boiling point जो है वो बताया हुआ है. Now what we have to do is कि जिसमें ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, क्रिप्टन है और ओस्मियम है. ठीक है. अब इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट किए हुए हैं. नेम द सब्सटेंस इन द टेबल विद द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. अब इसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आप ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट वाले पोर्शन पे आ जाएं तो यहाँ पर -7.2, -101.5, 113, -157.2 और ओस्मियम का 3000 है. तो इसमें जो सबसे कम वाला मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो सबसे ख़तरनाक किस्म का मेल्टिंग पॉइंट है वो है -157.2, दैट इज़ ऑफ क्रिप्टन. ठीक है. नाउ पार्ट बी इज़ नेम द सब्सटेंस इन द टेबल विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम जो है वो क्रिप्टन का ही है, दैट इज़ -152.3.
नाउ पार्ट सी इज नेम 2 सब्सटेंस इन द टेबल दैट आर गैसेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ये पता करना है कि कौन सी जो है वो गैस थी। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखें कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें कि कहाँ पर जो है वो गैस में होगी। तो इसमें जो है वो क्लोरीन और क्रिप्टन ऐसी हैं जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस की फॉर्म में होगी। नाउ पार्ट डी नेम 2 सब्सटेंस इन द टेबल दैट आर सॉलिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऐसी चीज़ें जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड की फॉर्म में हो। तो इसमें जो है वो पार्ट डी का आंसर होगा आयोडीन और ओस्मियम, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 113.6 और 184.6, तो ऑब्वियसली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड की फॉर्म में होगी। और ओस्मियम का तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो वो जाहिर सी बात है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसने सॉलिड ही होना है। अच्छा, नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट ई। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, यू मे यूज़ देम वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। ये भी वही है कि 3 ऑप्शंस दिए हुए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और हमें ये ब्लैंक है जिसमें फिल करना है। When bromine is heated from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लेट से कि अगर हम ब्रोमीन को हीट करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इट चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, यानी ये चेंज हो जाएगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज होगा, तो हम ज़रा ये देख लेते हैं कि ब्रोमीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो किस फॉर्म में था। तो ब्रोमीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड में था लिक्विड फॉर्म में, और ये चेंज हो जाएगा फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ही 59 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो लाजमी है गैस की फॉर्म में चेंज हो ही जाएगा, तो स्टीम बन के चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, नाउ पार्ट एफ नेम द चेंज ऑफ स्टेट्स दैट अकर व्हेन ओस्मियम इज हीटेड फ्रॉम 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो ओस्मियम है जिसका जो टेम्परेचर है 3000 से 5000 है, अगर हम इसको 4000 से हीटअप करना शुरू करते हैं और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगी, तो ये जो है बॉइलिंग फॉर्म में आ जाएगी, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Now come to question number 8. The diagram shows the melting point and the boiling point of silver. यानी एक डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट करिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। इसमें आप देखें 900 से ऊपर कुछ जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर है, और बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो ऑलमोस्ट 2250 यानी 2250 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नाउ कम टू पार्ट ए। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ सिल्वर एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो सिल्वर का जो स्टेट होगा वो क्या होगा, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सिल्वर का स्टेट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, यानी वो बॉइलिंग की तरफ जा रही है, तो अब वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, नेम द चेंज ऑफ द स्टेट डेट अकर्स व्हेन सिल्वर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर इसको अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज करेंगे तो इसका जो चेंज ऑफ स्टेट है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सिल्वर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और हम देख रहे हैं कि ये मेल्ट हो जाता है कहाँ पर 900 कुछ 950 960 तक ये मेल्ट हो जाता है। तो यानी जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है वो हुआ है सॉलिड से लिक्विड, और जो मतलब जो चेंज आई है वो मेल्टिंग कहेंगे उसको, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है, तो जो चेंज आई है दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग। तो इसका आंसर होगा मेल्टिंग। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट। द पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, द पार्टिकल्स टच देयर नेबर, और द पार्टिकल्स मूव अराउंड इन एंड आउट ऑफ ईच अदर। नाउ वी हैव पार्ट ए। राइट द लेटर ऑफ the one statement above which best explains why you can pour liquid water, यानी हम लिक्विड वाटर को एक जगह से दूसरी जगह जो पोर कर देते हैं इजीली, वो क्यों कर देते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो और आगे पीछे सब जगह मूव कर जाते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम वाटर को ईजिली पोर कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा द पार्टिकल्स मूव अराउंड इन एंड आउट ऑफ ईच अदर। एंड वी हैव पार्ट बी। Write the letter of the one statement above which best help to explain why the volume of 1 gram of liquid water is similar to the volume of 1 gram liquid of solid water ice। यानी इसमें ये पूछ रहे हैं कि लिक्विड की फॉर्म में जो 1 ग्राम ऑफ वाटर था वो सॉलिड की फॉर्म में भी 1 वाटर ऑफ आइस की क्यों बराबर होता है, उसका रीज़न दे दो। इसका रीज़न जो है
वो है, यानी कौन सा वाला पॉइंट होगा। तो इसका रीज़न जो है वो पार्ट ए है कि द पार्टिकल्स टच देयर नेबर्स, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत इजीली जो है वो टच कर रहे हैं, इस ये रीज़न है इसका।